गड़बड़ है, या नेट नहीं मिला था। तुम लोग आ गए, मुझे पता चला। साइराम बेटा, all of you join your hands and close your eyes. Silent children, today we have decided to do the new words and the meaning from lesson, the story of the crow. Okay, so I will show you some one PPT and we will discuss the question answers of that lesson. Okay, I will show you the PPT of the meaning. Can you see? Hello, children, can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hard word. Okay. Yes. You can see. So first word is early. Early means jaldi, before expected time. Second is quiet. Early means jaldi. समझ में आ गया बेटा? Before expected time. ठीक है? Early in the morning, we wake up. Second is quiet, no noise. Shanti, silently. Third, listen. Give your attention to a sound. जैसे आप लोग listen to the music. Yes. While taking dictation also, you listen and write. Yes. Now, the fourth number is softly. Softly means here, not in a harsh voice. Harsh voice मतलब हाँ, वैसे जैसे तेज से बोलते हैं ना, जोर से बोलते हैं, harsh voice. कोई चीज को जैसे प्यार से बोलते हैं और हार्शली भी बोलते हैं, तो ये चीज है. सॉफ्टली मतलब नॉट इन ए हार्श वॉइस. बाइसिकल, two-wheeled vehicle that you ride by pushing the pedals. Bicycle. मैंने आपको पहले भी बताया था पढ़ते समय, बाइसिकल, ट्राइसिकल, बाइसिकल एंड यूनिसाइकिल. ट्राइसाइकिल आप लोग जब छोटे थे, मम्मी पापा ने आपको खरीद के दिया होगा, तीन पहिए वाला सपोर्ट है. और बाइसिकल मीन्स एक, इसमें भी पेडल्स ही चलते हैं, लेकिन बाइसिकल मीन्स दो पहिए, टू व्हील्ड व्हीकल. ठीक है. एंड यूनिसाइकिल, जो जोकर्स आपने देखा होगा सर्कस में, लोग ऐसे चलाते हैं उसको. एक ही चक्का होता है, उसमें एक सीट होता है, उसको बहुत ही
बैलेंसिंग करके चलाना होता है, वो भी पैडल से ही चलता है लेकिन, ठीक है। फुलिश, फुलिश मीन्स सिली। नेक्स्ट इज सिली मीन्स बुद्धू, है ना। सेवेंथ इज वाइड अवेक, वाइड अवेक मीन्स फुली अवेक। स्टॉप स्लीपिंग मतलब नींद से जाग जाना। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मीन्स daily or weekly publication, that is you have to read, you know, daily और weekly publication। कोई भी न्यूज एजेंसी से आपको कुछ ना कुछ न्यूज मिलता रहता है, ठीक है। अच्छा, न्यूज का मतलब NEWS, न्यूज का मतलब ही है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ से। Yes, ma'am. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या है, व्हाट इज न्यूज? NEWS का फुल फॉर्म क्या है पता है ना? Yes, ma'am. न्यूज का मीनिंग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या है, क्या है बताओ, किसको पता है? Garbage Jain. Ma'am, directions. Ma'am, directions. Yes, direction. Very good. अनमोल, वेरी गुड। डायरेक्शन। अच्छा, अगर हम मैप देखते हैं तो मैप को 4 भाग में डिवाइड कर दो, दैट्स डायरेक्शन, ठीक है। 4 भाग में बांटते हैं ना, जहाँ जिस साइड से हमको सूरज उगता दिखता है दैट इज ईस्ट, जो जिस जिस साइड में वो डूबता है दैट इज वेस्ट, और जो हमारा लेफ्ट साइड दैट इज नॉर्थ एंड राइट साइड इज साउथ। अगर हम फेसिंग टू द सन करते हैं, खड़े हो जाओ तो आप ऐसे, तो आपका फेस जहां राइज होता है सन वहां देखोगे दैट इज ईस्ट, बैक साइड वेस्ट, left side is north and right side is south. Okay, so this is all about, and this you have to write. I will send you. Okay, you have to write in your copy. Okay, I will send this in your WhatsApp. 1 minute. Okay, 1 minute. I will send you. I will send you in your WhatsApp. Okay. Okay. So this is all about for today's class. I thought we will do reading is fun, but I will discuss the questions. Okay, with you. Otherwise, take out your books. Beta. Can you see me now? Ma'am, page number. Ma'am, page number. Yes. Yes, I will. I will tell you. Actually, I was today. Today, I thought we can't join the class because it was like that only. I was very puzzled to get inside this class today. Okay, page number, you know. We will discuss also. मैम पेज नंबर क्या है? I will tell you. Wait. Page number. Page number 60. 6060. Okay. 3 questions are there. 3 questions are there.
Can you see? Page number. Reading is Ma'am, page number. page number 6. Page number 6060. Reading is fun. मिल गया सबको? पीहू मिल गया बेटा? Yes, ma'am. देखो, हाँ, पेज Yes, number ma'am. first question. Yes, ma'am. Anant Verma, read out first question. First question read करो जरा. What हाँ. thanks do you hear on the road in the morning? हाँ, morning नहीं है, morning. What sounds do you hear on the road in the morning? What sounds do you hear? What sounds do you hear? Athar, Ma'am. what sounds do you hear? Ma'am, bird. हाँ, Ma'am, Ma'am, in Ma'am, vegetable. in the morning we hear. हाँ, yes, very good. Ma'am, newspaper. Newspaper boy. Ma'am, newspaper boy. Ma'am, newspaper boy. Newspaper boys, bicycles sound. Newspaper boys, bicycles twinkling sound. Yes. And the top of the school going children. Milkman. And Cycle. you people talk about Man. yes. Yes, yes. So can you write your own answer? If you write your own answer, you will remember it well. This is the secret. समझ में आया? अगर बच्चे अपना लिखते हैं तो खुद को मीनिंग समझ के लिखोगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा. ये बहुत बड़ा सीक्रेट है. ठीक है? What sounds do you hear on the road in the morning? So in the morning we hear the sounds of number 1 birds, vegetable man, boys, newspaper boys, bicycles, twinkling sound. Yes, and the talk of the school going children. जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बहुत आवाज करके जाते हैं, चटर पटर चटर पटर. Yes, so these are the 4 things you can write yourself. Yes or no? Can you write? Ma'am. Yes. Yes. Ma'am. Yes. You can write. Yes, ma'am. You try to write. You try to write. Okay, you try to write. What is the vegetable man selling? What is the vegetable man selling? You will get the answer if you read it well. See, on page number 58. On page number 58, it is the vegetable man. Second para. Who is this coming now? It is the vegetable man. Peas, cauliflowers, cabbages, says the vegetable man. That means peas. He is selling onion, peas, potato, cauliflower, cauliflower, cabbages. kattu, Yes, bhindi, potatoes, cucumbers, radishes, potato. carrots. Ma'am, pumpkin, Okay. How many vegetables are there? Here there is no lady finger. Reading is fun means you have to read the lesson and from that you have to answer. आपको बुक पढ़ के उसमें क्या है वो लिखना है. वेजिटेबल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जो वेजिटेबल मैन है वो क्या क्या बेच रहा है दैट यू हैव टू राइट. ओके. पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस 3 हो गए. पोटैटोस, कुकुम्बर्स, रेडिशेस 6 हो गए और कैरेट्स 7 वेजिटेबल्स ही इज सेलिंग. चैलेंजिंग बुरे ये क्या है? आप लोग चैट बॉक्स से करके कुछ भी लिख रहे हो है? देखो
पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस। पीस मतलब क्या है इलेश? पीस मतलब क्या है इलेश? मटर। अंश? मटर। मटर। मटर 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 खाना पसंद है? चटर Yes, मटर ma'am. खाते हो? Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. हाँ। उसको जब फ्राई करके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, चटर पटर करके। और नेक्स्ट कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मतलब क्या है? कॉलीफ्लावर कौन बताएगा? कॉलीफ्लावर मैम फूल गोभी। मैम फूल गोभी। मैम फूल गोभी। तभी से मैम फूल गोभी। देखो इसके फूल गोभी और मटर डाल के जब पुलाव बनता है बहुत टेस्टी लगता है ना। तो कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। देखा है सबने? यस देखा भी और खाया भी होगा। यस अच्छा, मैम। कैबेजस मतलब अंश मीना, कैबेजस मतलब क्या है? अंश मीना, कैबेजस कैबेजस मतलब क्या है? कैबेजस मतलब पत्ता गोभी। कैबेजस मतलब पत्ता गोभी, ठीक है। पोटैटोस मतलब सबको मालूम है। पोटैटो मतलब शिवम? आलू। आलू। कुकुम्बर मतलब सानवी? सानवी कुकुम्बर मतलब है? बंदा कद्दू नहीं है। गोभी। कौन बोला कद्दू? बेटा खीरा होता है कुकुम्बर, ठीक है? ककड़ी नहीं, ककड़ी अलग है। ककड़ी अलग है। खीरा। खीरा, ओके। रेडिशेस मतलब क्या है? रेडिश मतलब क्या है? मूली। गाजर। कैरेट गाजर। मूली। अच्छा, तो रेडिशेस मतलब मूली और कैरेट मतलब गाजर। मैम गाजर का हलवा बहुत पसंद है। गाजर। हाँ, गाजर। गाजर। ये सारे सब्जियां आपको खानी चाहिए। ओके, ये सब चीजों में विटामिन ए, सी ये सब होता है। पोटैटो मोटापा बढ़ाता है। खीरा खाओ तो अच्छा है, शरीर में अच्छा रहेगा। रेडिशेस, मूली सैलेड में डाल के खाओ तो वो भी अच्छा लगता है। के अंदर पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस, हाँ, जो भी वेजिटेबल्स जिसमें पानी है तो वो सब्जी ज्यादा अच्छा होता है बोलते हैं, ठीक है। सो यू शुड ईट वेजिटेबल्स that have water in it, okay? जैसे लौकी है ना, लौकी में भी ज्यादा पानी है। कद्दू है, पंपकिन, ये भी खाना चाहिए, ठीक है। शिवन्या वेरी गुड। आप लोग ये सब कहाँ से ढूंढ लेते हैं जल्दी से चैट बॉक्स में? मैम रेडी हाँ? फिंगर खाना चाहिए ना। हाँ, नहीं सब खाना चाहिए, जो भी सीजन फ्रूट्स है सब सीजन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना ही चाहिए, है ना। नेचर ने हमको ऐसे ऐसे चीज दिए हैं जो जो हाँ, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब सीजनल जो भी है वो खाना चाहिए, उससे हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो हम बेमौसम चीजें खाते हैं ना उससे हमको कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हम लोग हर सॉरी
हम लोग हमेशा एक ही चीज में ये रहते हैं, मतलब चलो आलू खा लो, आलू गोभी, नहीं तो मटर, आलू, ऐसे सब सब्जियां ज्यादा खाते हैं, बच्चों को ये पसंद है, लेकिन सारी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। सब में अलग अलग विटामिन मिनरल्स होते हैं। गाजर का जूस पियेंगे, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अब अपन सारे लोग इतना ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके टीवी के सामने, मतलब इसमें से जो रेडिएशन है इसको दूर कर सकता है, ठीक है। इसलिए अब जब कैरेट आएगा उसका जूस पिए। जो चीज कच्चा खा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वैसे चीजें खाएं, ठीक है। लेकिन एक बात है, सैलड आप लोग ना शाम को ना खाएं, दोपहर के टाइम में ही सैलड खाइए, ठीक है। ये एडवाइसेबल है, ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि शाम के टाइम में सैलड नहीं खाएं, दही भी नहीं खाएं। आपको जो भी खाना है दोपहर को खाओ, ठीक है। ओके, उसका मतलब है आप लोग लिख सकते हो आंसर्स ना। व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, अनिरुद्ध कोठारी जैन, आप लिख सकते हो ना? देवादित्य लिख सकते हैं? ओके, वेरी गुड। अर्पित लिख सकते हैं ना? दो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में समझा रही हूँ, आप सुनो। थर्ड क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, so if you want to write, you can write it, and you write 3 questions in your copy, ठीक है। 2 क्वेश्चन समझा दिया, बुक पेज नंबर उसमें है, आप लोग उसका लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग। ये किसकी आवाज आ रही है बेटा? कौन है ये? क्योंकि आज ना मेरा जो कंप्यूटर है आज थोड़ा गड़बड़ है ना। मैं अगर आगे पीछे करूंगी ना ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी कुछ कर नहीं रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। इसलिए देर से भी ज्वाइन किया था, कोई बात नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द रोड annoyed with the crow? Why is the road annoyed with the crow? Road annoyed means बहुत जोर से गुस्सा आना, चिढ़ जाना। चिढ़ के गुस्सा आता है ना, कोई उसको बार बार छेड़ते रहते हैं तो उसको बहुत जोर से गुस्सा आता है। ये जो क्रो है, रोड को बहुत बार बार क्रो का करके उसको परेशान कर रहा था, तो उसको जोर से गुस्सा आया रोड को, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है ढूंढना है आपको। Why is the road annoyed with the crow? Why is the crow annoyed with the crow? पीहू बता सकते हो? पीहू, हमने लास्ट में पढ़ा था, देखो पेज नंबर 59 में देखो, इसमें क्या बोलता है? वेक अप, आस्क द रोड। यस मैम। आप आंसर दे सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं इसका। Why is the crow? Why is the road annoyed with the crow? लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट पेज नंबर 59 में देखो, वेक अप, आस्क द रोड। वेक अप, The road says can listen first. आपको अच्छे से पढ़ना नहीं आता। But अनिरुद्ध अपना माइक ऑफ करो, सारे बच्चे ऑफ करो, सिर्फ पीहू का माइक ऑन रहेगा। पीहू का माइक ऑन रखो। हाँ, लास्ट स्टैंजा बाकी सबको सुनना है। 59 पेज में 5th लाइन, नीचे से 5th लाइन देखो। काव 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 says the crow, काव काव wake up, wake up ask the road, can't you see you foolish bird, I am wide awake। इसी में आंसर छुपा है, ठीक है। कैसे लिखोगे?
हाँ, कैसे लिखोगे सेंटेंस में वो देखना। Can't you see you foolish bird? उसका मतलब है क्या आपको दिखता नहीं है क्रो, तुम मुझे बार बार जगा रहे हो। आई एम वाइड अवेक, वाइड अवेक मतलब मैं तो जागा हुआ हूँ, तुम क्यों मुझे बार बार जगा रहे हो। Can you see हाँ, you foolish bird? I am walking. हाँ, तो इसका आंसर आप ऐसा देना है, Why is the road annoyed with the crow? तो अंडरलाइन करते जाओ और लिखना The road is annoyed with the crow. ठीक है, आप अंडरलाइन करो The road is annoyed with the crow और उसके नीचे लिख लो Because it is waking up the road again and again, but the road is wide awake, already wide awakened, because Yes, it is ma'am. waking up the, but it is wide awakened. It is already wide awakened. वो जागा हुआ ही है, वो तो सोया ही नहीं है ना। आए समझ में, लिख लोगे शिवाम, बाकी बच्चे Yes, ma'am. अनंत, अंश, Yes, ma'am. क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कल मेरा क्लास है ना, फिर मैं पूछूंगी The road is annoyed with the crow because it is मतलब crow is waking up the road again and again, but the road is wide awakened. ठीक है, it is already awakened. ठीक है, समझ में आया। अब दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक, Yes, ma'am. आज बाकी तो हम लोग का ये हो चुका है, टॉक टाइम एक्सरसाइज सब हो चुका है। एक दो दिन, अच्छा हम एक एक्टिविटी देंगे आप लोग को, सिर्फ यही सब्जी का नाम नहीं, जो सब्जी है, ये जो अपन ने अभी जो सीखा है सब्जी, उसका नाम आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको हिंदी में लिखना नहीं है। जैसे पीस का स्पेलिंग PEAS, पीस इंग्लिश में। एक साइड में यहाँ देखो, मैं बता रही हूँ बोर्ड में सारे बच्चे, वेजिटेबल्स नेम, ठीक है, यहाँ पे लिखना है इंग्लिश और इस साइड में लिखना है हिंदी। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। Yes, ma'am. ये इधर Yes, ma'am. अच्छे से देखो, दिख रहा है। मैं कैमरा करूँ वैसे, दिख रहा है ना, इंग्लिश हिंदी दो ऐसे पार्टीशन करते हैं। कॉपी का पार्टीशन करना, वेजिटेबल्स नेम इंग्लिश हिंदी। अब फर्स्ट आपने मटर लिखना है, पीस मतलब हिंदी में लिखो मटर, MATAR, मटर। ठीक है, समझ में आ रहा है अंश, समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ऐसे आपको जितने बुक में है उसको भी लिखना है, और आपको और वेजिटेबल्स जो पसंद है उसका नाम लिख के हिंदी में ऐसे लिखना है। पीस, मटर को भी आप इंग्लिश में ही लिखोगे, MATAR, मटर। ठीक है, अंडरस्टूड युवराज, समझ में आया? Okay. समझ में आया? ओके, तो आप चाहे तो आप लोग पिक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, उस साइड में मटर बनाओ,
हाँ, तो ये एक्टिविटी हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है, ये एक्टिविटी है। इसके भी मार्क्स आएंगे आपके पास, सबको इसको भेजना है, फिर पर्सनल उसमें ही भेजना, ठीक है, फोटो खींच के। ये मैं आपको दे दूंगी वर्कशीट में। ओके, सो वी विल नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा, उसको टाइम देंगे। आपको अभी जो मैंने न्यू वर्ड्स और मीनिंग डाला है वो आपको मैं ये सब आज मैम व्हाट्सएप में भेजना है। हाँ, हाँ व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वर्कशीट भी बना के डाल दूंगी, ठीक है, वर्कशीट भी मैं टाइप करके डाल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो वी विल क्लोज द class. All of you join your hands. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam children, you can leave the class. Sairam, Sairam ma'am, Sairam, thank you ma'am. जल्दी Sairam ma'am, thank you ma'am.